Good evening, all of you. Now, we are dealing with the most important topic from our medicinal chemistry point of view, that is the quantitative structural activity relationship. Okay. Now, we are very much aware regarding the structural activity relationship, as our basic aim is the receptor. Okay, we have to approach the drug towards the particular receptor. Okay, so by knowing the SAR, we can changes the various substituent on the drug and we can increase their activity. Okay, so by changing the various structure on the particular drug or by changing the various substituents which are attached to the particular drug, we can improve the response towards the, or we can improve the attachment of the drug towards the particular receptor. So our receptor is a specific kind of lock, okay, and our drug is a specific kind of K which will fit into that particular lock. Okay, so drug should have the specificity of the various substituents. Okay, the substituents which are attached on that particular drug, okay, can change the mechanism of the attachment of the particular drug towards the particular lock. Okay, so it is the lock and K type of mechanism. So we are dealing with the quantitative structural activity relationship. It means that we are dealing with the physiochemical parameters, mathematical relationships, especially between the physiochemical parameters of the drug, means of the drug structure, which can affect the biological activity or therapeutic efficacy of the drug. So it is the mathematical relationship between the physiochemical parameter which affects the biological activity of the particular drug. Okay, so what are that physiochemical parameters? We discuss it by one. Okay, the most important is the hydrophobicity. Another one is the substitution constant, which is denoted by pi. Then second one are the electronic parameter, in which the Hammett constant denoted by sigma is the most important. Then third one are the steric parameters, in which the tap constant denoted by Es is very important. Okay, so finally we are dealing with the specific structure with specific substituents which are attached to a particular drug structure. Okay, and the importance of that specific substituents on the biological activity of a particular drug. Okay, so now we are very much aware with the term that is the hydrophobicity. Hydrophobicity. Okay, so why hydrophobicity is much important? We have already discussed it about the hydrophobicity, that our GI lumen is hydrophobic in nature. Okay, and the drug, if you want to absorb the particular drug from that GI lumen, so your drug should be hydrophobic. Your ultimate aim is to cause that particular drug from the GI tract. Even the receptor is having two sides, hydrophobic site as well as hydrophilic site. So our drug must be hydrophobic as well as our drug must be hydrophilic. So it should achieve a proper balance between hydrophobicity as well as the hydrophilicity. Because if the drug is more hydrophobic, okay, so if the drug is more hydrophobic, so it is poorly soluble in water. It is poorly soluble in water. So it may or may not cross the GI lumen, or it may or may not absorb properly. So it must show proper balance between the hydrophobic or hydrophobicity as well as hydrophilicity. Okay, so we have discussed regarding the log P value which will determine the hydrophobicity.
and we must know that log p value is, if the log p value is less than 0, if the log p value is less than 0, then the drug is hydrophilic. Okay, if the log p value is greater than 0, if the log p value is greater than 0, then our drug is hydrophobic. So we have discussed that term. If the drug is, so log p value is less than 0, then our drug is hydrophilic. If the log p value is greater than 0, then the drug is hydrophobic. Okay, so we must aware that about the term Parshian coefficient. Okay, so why the term Parshian coefficient is included? Because in the body, when the drug is present at the site of absorption, okay, so it must cross the GI lumen barrier, as well as it should be properly absorbed, or it should be properly soluble in the GI fluid or water, we can say. Okay, so it must have hydrophobicity and also the hydrophilicity. Okay, so in vitro, outside the body, how can we check the drug is hydrophilic as well as hydrophobic in nature? So we have the term Parshian coefficient. Okay, so Parshian coefficient is indicated by the particular formula. Okay, so concentration of drug in octanol and the concentration of drug in water. Okay, so if we put the particular drug in the mixture of octanol and water, okay, so how the drug shows its solubility in the octanol, and how the drug shows its solubility, concentration of drug in the water. Okay, so how the drug, how many concentration or how much of the drug gets soluble in the octanol is to the how much of your drug is soluble in your water. So the ratio is indicated by the term Parshian coefficient. Okay, so it is the most important part of the drug structure, that it must be hydrophobic as well as it must be little bit hydrophilic. Okay, now we are taking this relationship in the form of Hansch analysis or Hansch equation. Okay, so the biological activity of the particular drug is shown by the equation 1 upon log C. Okay, so what is C? C is the concentration of the particular drug which shows the particular biological activity. The concentration of a drug which shows the biological activity is C. Okay, so according to the Hansch equation, the drug means the drug, especially hydrophobicity. So hydrophobicity of a particular drug is indicated by the log p value. Okay, so we plot a particular graph between the log p means hydrophobicity and the biological activity, as we have earlier discussed here. Okay, so here we can see the graph in which log p value is there, which shows the hydrophobicity, and 1 upon log C, which shows the biological activity of the drug. So according to the Hansch analysis, so we are going to plot a graph and we get the linear relationship. Okay, so how we can get the linear relationship from that particular graph? So here, so firstly, when the drug enters the blood, means from the site of action, when the drug enters from the site of action or from the site of administration. Okay, here we can say the site of administration. So the drug, or from the site of absorption we can say. Okay,
So when the drug is present at the site of site of absorption, so the drug comes into the blood, and from the blood it will go up to its targeted action, or it will go up to its targeted site. Okay, from the site of absorption, here we can say the site of absorption, the drug will go from the site of absorption into the blood, and from the blood it will distributed up to its targeted site, that is the cell receptor. Okay, so when the drug is present in the blood, so it will get attaches with the plasma proteins, okay, plus drug. So one complex will be there of the plasma protein and the drug, and this complex get attached toward the particular receptor from which the drug is absorbed from the receptor. Okay, so if our hydrophobicity of the drug is more, then the binding of the drug with the plasma protein increases. Okay, if we have more log P value, means more hydrophobicity, so the binding of the drug with the plasma protein increases. Okay, and then the biological activity also increases. Okay, so here we can say the linear relationship. So as the hydrophobicity increases, the biological activity also increases. So it is indicated by this particular type of equation. Okay, log 1 by C, that is biological activity, equals to A log P plus B sigma plus CES plus D, while A, B, C, D are the constant of the system. Okay, log P is the hydrophobicity or substituted constant. ES is the TAPS constant or steric factor. We will discuss it about rather. Then also the sigma denotes for its Hammett substituent constant. We will also discuss it later. Okay, so here we can see the linear relationship. Okay, so then Hansch also proposed that some kind of non-linear shape. Okay, for here we can say the parabolic graph. We can see the parabolic graph. Okay, so how this parabolic graph occurs, or how we can see that particular parabolic graph. Okay, so why in case of anesthetic drug, okay, so we are properly aware about the anesthetic drug. Okay, so anesthetic drug means after imparting the specific anesthetic drug to the particular patient, so it will acquire anesthesia. Okay, and then the concentration of that particular drug from the blood later on goes on decreasing. Okay, up to the wake up of the particular person. Okay, so if we increases the log P value in this term, so the biological activity also increases, but up to the certain maxima. So by achieving that particular maxima, if we further increases the log P value, then the biological activity goes on decreasing. Okay, so we can clearly see the parabolic relationship in case of anesthetic drug. Okay, so here the maximum log P value is that portion. At that log P0, at that particular value, we can see the maximum biological activity. Later on, the biological activity goes on decreasing. Okay, so here we can see the particular equation, minus A log P, B log P, P sigma
ES plus K. Okay, so here the P goes for the Paschen coefficient, that is the particular distribution of the drug in water and water coefficient, sigma for the Hammett constant, ES for the top steric factor, K for the constant term, and P for the proportionality constant. Okay, now the most important point is that everywhere we can see the term that is the Hammett constant. Okay, so Hammett constant, it indicates the electronic parameters. See, we can see the electronic parameter. Okay, in the top constant we can see the steric parameters or steric factors. Okay, so everywhere we can see that sigma value and that ES value. Okay, so now I am going to change my language little bit over there. So electronic parameters are what? So electronic parameters means electron releasing group, okay, as well as electron withdrawing group. Okay, and that activity of this particular group means किसी भी स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लग रहे हैं और किसी भी स्ट्रक्चर को अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग रहे हैं तो ड्रग पे इनका इफेक्ट क्या होगा, दैट विल बी शोन बाय द Hammett constant. Okay, and what is the top constant? So these includes the steric factors. Okay, so arrangement of a particular atom or particular substance or particular atom in the space, that is its spatial arrangement. So by checking the specific arrangement or by studying the effect of the specific atom on that particular structure of its spatial arrangement, here we will study in the top constant. Okay, so now we are specially dealing with the term that is the substituent hydrophobic constant denoted by पाई एक्स. ओके, सो यहाँ पे एक फॉर्मूला इंडिकेट यहाँ पे शो किया गया है, पाई एक्स इक्वल्स टू लॉग पी. लॉग पी हमें पता है कि हाइड्रोफोबिसिटी. ओके, यहाँ पे भी माइनस में हमने लॉग पी, लेकिन इसके बेस पे लिया है हमने हाइड्रोजन, इसके बेस पे लिया है हमने एक्स. ओके, सो यू आर वेरी नोन अबाउट द टर्म लॉग पी. ये स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसका दिख रहा है, बेंजीन का दिख रहा है. ओके, सो बेंजीन की लॉग पी की वैल्यू कितनी है, 2.13. ओके, सो व्हाट इज पाई एक्स. पाई एक्स हम इसलिए निकालते हैं, दैट इज द सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट. इस स्ट्रक्चर को कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है, आप क्लियर भी दे सकते हो कि यहाँ पे क्लोरीन लगा हुआ है और यहाँ पे एक कार्बोनिल अमाइड ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है, CONH2 ग्रुप लगा हुआ है, आप क्लियरली यहाँ पे दे सकते हो. ओके, सो अब ये लॉग पी एक्स क्या बोलता है कि लॉग पी के स्ट्रक्चर को या फिर सिंपल स्ट्रक्चर को कौन सा सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे अटैच्ड है. ओके, तो यहाँ वो सब्स्टिट्यूएंट से जब उस स्ट्रक्चर पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं होगा, इसकी वैल्यू जब माइनस करते हैं, ओके, सो इस लॉग पी की वैल्यू में से जब इस ड्रग को कोई भी सब्स्टिट्यूएंट लगा नहीं है, वो वैल्यू को अगर हम माइनस करते हैं सो हमें मिलता है सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रोफोबिक कांस्टेंट. ओके, अब यहाँ आप देख सकते हो कि पहले बेंजीन था, फिर बेंजीन को क्लोरीन लगा और क्लोरीन के बाद में ये यहाँ पे CONH2 ग्रुप लगा. ओके, अगर ये निकालना है कि एक ही स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल एक ही अगर ड्रग के स्ट्रक्चर को, फॉर एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं, एक ही अगर ड्रग के स्ट्रक्चर को अगर Cl भी लगा हुआ है और अगर CONH2 ग्रुप भी अगर लगा हुआ है, तो फिर उसकी मैं थ्योरेटिकल लॉग पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. ओके, उसकी मैं थ्योरेटिकल लॉग पी वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ. कैसे, लॉग पी बेंजीन की कितनी थी, 2.13.
यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, देन अगर इसको क्लोरीन लगा हुआ है तो यहाँ पे देखो पाएक्स की वैल्यू मतलब पाए Cl की वैल्यू कितनी है 0.71, तो प्लस 0.71 यहाँ पे लिया मैंने। उसके बाद में इसी स्ट्रक्चर को अगर CONH2 ग्रुप अगर लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो -1.49, तो 2.313 प्लस 0.71 माइनस 1.49, सो आई गॉट द 1.35, दैट इज थ्योरेटिकल वैल्यू। लेकिन जब हम इसकी एक्चुअल वैल्यू डायरेक्टली मेजर करते हैं तो सबसे पहले हमें सिंथेसाइज करना पड़ेगा। ये थ्योरेटिकली हमने कैलकुलेट किया, तो सिंथेसाइज जब हमने किया तो हमें 1.51 ये वैल्यू इसकी ऑब्जर्व मिली। यानी हम इसे थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली जब ये सिंथेसाइज होगा तो ऑटोमेटिकली हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी आर डीलिंग विद द टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज द Tapp constant and the Hammett constant. Okay. So अब हमें पता है कि जब कोई भी रिएक्शन जब हम सिंथेसाइज करते हैं, ओके, रिएक्टेंट से हमें पहले एक हाई एनर्जी स्टेट देखने को मिलती है जिसका नाम है ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें जो इंटरमीडिएट होता है, एक इंटरमीडिएट मिलता है हमें रिएक्टेंट से इंटरमीडिएट, और उससे हमें प्रोडक्ट मिलता है, ओके। सो ट्रांजिशन स्टेट अगर देखा जाए, हमने देखा है SN1 में कार्बोकटायन फॉर्म होता है। SN1 रिएक्शन हमने स्टडी की है इन द सेकंड सेमेस्टर में हमने SN1 के बारे में देखा है, तो उसमें हमें कार्बोकटायन एज ए इंटरमीडिएट मिलता है और इसकी एनर्जी, इसको ट्रांजिशन स्टेट कहा जाता है क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत हाई होती है और उसके तुरंत ही बाद हमें प्रोडक्ट मिलता है। ओके, अब ये ट्रांजिशन स्टेट में जो हमें इंटरमीडिएट मिलता है वो इंटरमीडिएट मेरा, देखो अभी इंटरमीडिएट अगर मेरा कार्बोकटायन हो सकता है, ओके। कार्बोकटायन इस तरह से हमें मिला था, कार्बोकटायन याद होगा आपको, याद करो, ओके। या फिर हमें मिल सकता है वो कार्बन आयन, ओके, या फिर हमें मिल सकता है फ्री रेडिकल, ओके, या फिर इन तीनों में से हमें ये मिलेगा, ओके। नाउ हैमेट का कहना क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, हमने पिछली बार भी देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर कौन से, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एज वेल एज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का क्या इफेक्ट होता है, ये हमें स्टडी करना है। इससे पहले हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना है, हमें पता है कि AB अगर रिएक्शन है और वाटर में इसका डिसोसिएशन हो रहा है A पॉजिटिव में, ओके, और B नेगेटिव में, और वीक होने के कारण इसमें इक्विलिब्रियम है रिएक्शन में, ओके। सो अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो हमें K की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A पॉजिटिव, चलो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B नेगेटिव ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AB, ये बात हमें पता है, ठीक है। अब जब हम हैमेट कांस्टेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं तो सिंपली हमें बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल लेके, ये जो बेंजोइक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ पे लेना है ड्यूरिंग द हैमेट कांस्टेंट यहाँ पर स्टडी करने के लिए। उससे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जब कोई भी अगर वीक एसिड अगर है, ओके, कोई भी अगर वीक एसिड अगर है, या फिर मैं लिखता हूँ RCOOH, ओके, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम की कंडीशन मुझे मिलती है कि RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। आपको याद आता होगा तो ये बात हमने देखी है। सो अभी इसकी एसिडिटी किस पे डिपेंड है, इसके एसिडिटी इस पे डिपेंड है कि ये दोनों मीन्स ये जो दोनों आयन्स है, एक अनायन और एक कैटायन, ये वापस से कंबाइन ना हो पाए। अगर वापस से रीयूनाइट हो गए तो अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल का यहाँ पे RCOOH का परसेंटेज अपने आप बढ़ जाएगा, ये अगर फिर से कंबाइन हो गए तो, ओके। इसीलिए तो ये एसिड वीक होता है कि ये रैपिडली एक दूसरे के साथ में कंबाइन होते हैं, ओके। लेकिन हमें यहाँ पे याद रखना है कि हमें
इस अनायन को स्टेबिलाइज करना है। जब ये स्टेबल होगा तो इसके साथ में कंबाइन नहीं होगा, और जब इसके साथ में कंबाइन नहीं होगा तो ये यहाँ पे डिसोसिएटेड फॉर्म भी रहेगा। लेकिन ये अगर अनस्टेबल है तो इजीली H पॉजिटिव के साथ में रिएक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे हमें फिर से अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल RCOOH के यहाँ पे मिलेंगे। ओके, सो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये इसके साथ में रिएक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए अभी यहाँ पे बोलता हूँ मैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगाते हो R की जगह, आप जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हो तो ये स्ट्रक्चर स्टेबलाइज रहता है और ये रिएक्शन ज़्यादातर अमाउंट में क्लियरली होती है, यानी इक्विलिब्रियम जो है वो राइट साइड में यहाँ पे शिफ्ट होता है। ओके, लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे लगाते हो तो ये इस आयन को क्या कर देता है, इस आयन को कर देता है अनस्टेबल। और जब हमने पहले देखा है जब ये आयन अनस्टेबल होगा तो ये रैपिडली इसके साथ में रिएक्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देगा, और इक्विलिब्रियम को लेफ्ट साइड में से शिफ्ट किया तो हमें अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ RCOOH मिल जाएगी। इतनी एसिडिटी, उतनी रिएक्शन प्रॉपरली ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में अपने आप मेरी यहाँ पे शिफ्ट हो जाए। ओके, सो हैमेट कांस्टेंट हम जो स्टडी करते हैं बाय टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ बेंजोइक एसिड। अब यहाँ पे आप बेंजोइक एसिड देख रहे हो कि बेंजीन को कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे पैरा पोजीशन पे अटैच्ड है। ओके, अब पैरा पोजीशन पे जब अटैच्ड है तो इसका डिसोसिएशन होगा, इसका डिसोसिएशन होके यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे मिल रहा है बेंजोएट आयंस। ओके, बेंजोएट आयंस ही मिल रहे हैं और H पॉजिटिव आयन मिल रहे हैं। मेरा इंटेंशन है कि भाई ये बेंजोएट आयन जो है ये H पॉजिटिव आयन के साथ में कंबाइन ना हो पाए, तो रिएक्शन ज़्यादा अमाउंट मेरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो। ओके, तो मुझे इस बेंजोएट आयन को यहाँ पे स्टेबलाइज करना पड़ेगा। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो मेरी स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गई। ये जो पहले की रिएक्शन आप देख रहे हो इसको कोई ग्रुप अटैच है क्या नीचे पैरा पोजिशन पे? कोई ग्रुप अटैच नहीं, सिर्फ पैरा पोजिशन पे इसको कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है। ओके, तो यहाँ पे मुझे बेंजोएट आयन भी मिले और H पॉजिटिव आयन भी मुझे मिले। ओके, और एक कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय सिंबल K। ओके, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि सेम मेरा बेंजोइक एसिड ग्रुप है, लेकिन उस बेंजोइक एसिड ग्रुप को क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। ओके, अब X में भी ये जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगा हुआ है वो सब्स्टिट्यूएंट में भी हो सकता है मेरा मिथॉक्सी ग्रुप, मगर OMe मैंने बोला इसका मतलब OCH3। ओके, ये सब्स्टिट्यूएंट होता है, हो सकता है मेरा सिर्फ हाइड्रोजन, यानी यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच नहीं है। ओके, या फिर X हो सकता है मेरा NO2 ग्रुप, इसको मैं कहूँगा X जो होगा मेरा दैट इज माय नाइट्रो ग्रुप। ओके, अब ये बातें आपके ध्यान में आ गई। अगर O मिथॉक्सी मतलब OCH3 ग्रुप अगर लगा हुआ है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। सीधा सीधा मैं पे बात बोलता हूँ आपको। अगर हाइड्रोजन लगा हुआ है चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर X की जगह अगर NO2 लगा हुआ है तो NO2 का काम है यहाँ पे दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब X की जगह NO2 लगा है तो ये जो रिएक्शन होगी इस पे NO2 अफेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप करके। ओके, अब यहाँ पे आपको K की वैल्यूज़ के बारे में एक यहाँ पे ऑर्डर दिख रही है। ओके, ये ऑर्डर क्या बोलती है कि K के जगह अगर OMe हमने लिया तो ये कम है अगर यहाँ पे H है उस, और ये किससे कम है अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप है। ओके, K मतलब ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कब, जब X की जगह ONe है, मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर लगा हुआ है, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप यहाँ पे अगर देखते हो, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हमने लगा था कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको डिस्टेबलाइज कर देगा, मतलब इसको अनस्टेबल कर देगा। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप को अगर इसने अनस्टेबल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने अगर इसको अनस्टेबल कर दिया तो इसके साथ में इजीली रिएक्ट होगा।
और ये अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ज़्यादा बनेगी इसके, बराबर है, मतलब रिएक्शन प्रॉपरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसीलिए ये कि यहाँ पे अगर मिथॉक्सी ग्रुप अगर है, अगर यहाँ पे मिथॉक्सी ग्रुप अगर है, ओके, तो इसकी वैल्यू कम रहेगी। किससे कम रहेगी? अगर हाइड्रोजन ग्रुप, मगर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन है, कोई भी सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे नहीं है। ओके, वो किससे कम रहेगी? अगर यहाँ पे NO2 ग्रुप मैंने लगाया। NO2 ग्रुप का काम क्या है कि NO2 ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैंने यहाँ पे लगाया तो इसको स्टेबल बना देगा। इसको स्टेबल बना दिया तो रिएक्शन स्टेबल बना दिया तो RC≡O नेगेटिव उसके साथ में रिएक्ट नहीं होगा। स्टेबल बना दिया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी ज़्यादा अमाउंट में, इसीलिए रिएक्शन का रेट यहाँ पे हमने ज़्यादा लिया है, जो कि इससे कम हाइड्रोजन वाला और इससे कम यहाँ पे ONE, मतलब जो इलेक्ट्रॉन लूजिंग ग्रुप मैंने लगा दिया गया है। ओके, अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पे। ओके, अब क्या देखा हमने कि अगर OMe ग्रुप मैंने यहाँ पे अगर लगा दिया, ओके, कौन सी पोजीशन पे है OMe ग्रुप? ये है यहाँ पे पैरा पोजीशन पे। ओके, अब क्या हो रहा है कि OMe मतलब OCH3, OMe का मतलब OCH3। ओके, अब ध्यान से यहाँ पे देखो, ध्यान से यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर इसके पास अगर लोन पेयर है, ओके, तो लोन पेयर क्या करेगा? ये वाले कार्बन के साथ में शेयर करेगा। ओके, इसके साथ में इसने लोन पेयर शेयर कर दी, मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसने इस कार्बन को दे दिए तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और इस कार्बन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने के कारण ये बॉन्ड हो जाएगा इधर शिफ्ट। ओके, आप देख सकते हो कि इधर बॉन्ड शिफ्ट हो गया। ओके, अब इधर ये बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो ये बॉन्ड अपने आप ब्रेक हो जाएगा और ये इस पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा सीधे सीधे, यानी ये वाले कार्बोनिल जो कार्बन है इस पे निगेटिव चार्ज आ गया। ओके, और यहाँ पे इसने इलेक्ट्रॉन इसके साथ में पहले कार्बन के साथ में शेयर कर दिया तो यहाँ डबल बॉन्ड आ गया। ओके, समझ में आ रहा है क्या? मैंने क्या बोला कि O नेगेटिव पे अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर ये पहले वाले कार्बन के साथ में शेयर करेगा, मतलब यहाँ पे देखो यहाँ पे बॉन्ड बन गया। इसने लोन पेयर दे दी कार्बन को तो इस पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाएगा। ओके, एट द सेम टाइम ये बॉन्ड हुआ इधर शिफ्ट। ओके, तो इधर ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो ये बॉन्ड ब्रेक होके ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों में जो रिलेशन था, ये बॉन्ड ब्रेक होने की वजह सारे जो जो इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बन ने पहले वाले कार्बन ने यहाँ पे रख दिए। ओके, लेकिन इसके नीचे मैंने बोला है कि O मिथिल ग्रुप रिएक्शन को करता है डिस्टेबलाइज। ओके, देन हम ये वाली बात देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज़ द, अगर मैंने NO2 लगाया, अब NO2 देखो यहाँ पे क्या करता है, रिएक्शन को स्टेबलाइज करेगा। मैंने